Hello students, I welcome you all on my channel English Odyssey, an English journey. I am Raj Pandey with yet another video. This video is going to be a series of literary terms. Literary terms एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते. It's a vast topic. So one by one I will be coming up with different literary terms in different videos, and this series will be made in different parts. So this video is going to be the first part in the series. So the first part is a common difference. A common difference between figure of speech, literary devices, rhetoric devices and poetic devices. Students, I have come up with this common confusion between students that they do not understand the difference between figure of speech, literary device, rhetoric device and poetic device. So I have decided that the first video in this series should be this only, and after that we will be coming up with different literary devices with different videos part by part. So let's start. So first one is literary devices. Literary devices are the tools. What is the meaning of tool? Tool मतलब क्या होता है? हथियार. जितने भी वर्कर्स होते हैं या फिर अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, लाइक इवन टेक एन एग्जांपल ऑफ पेंटर. जैसे एक पेंटर अपने आर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज करता है, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज करता है. उसी तरीके से एक राइटर, ठीक है, या एक पोएट, while writing a poem or any piece of literature, ठीक है, he or she uses the literary devices or the tools, right? And these tools that they use are known as literary devices. इन tools को ही हम literary device कहते हैं. तो वो ये tools क्यों यूज करते हैं? To express their inner intentions. अपने inner intentions को express करने के लिए यूज करते हैं. तो इन अ मोस्ट इफेक्टिव वे अपने इनर इंटेंशंस को सबसे इफेक्टिव वे में एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. सपोज टेक एन एग्जांपल, और यू वांट टू एडमायर अ गर्ल, ठीक है, व्हाट यू विल से? यू विल से शी इज ब्यूटीफुल, राइट? शी इज ब्यूटीफुल. आप लिखोगे ऐसे. लेकिन अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से बोलूं, she shines as a star. The same thing. She is beautiful. I want to admire that girl. I said this and one said this. Which one is more attractive? This one, right? Here a literary device is used. The literary device known as simile. Simile, जहां पे हम किसी दो अलग अलग चीजों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं. तो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, राइट? जैसे कि यहां पे स्टार की जो चमक है उसको लड़की की, गर्ल की ब्यूटी से कंपेयर किया गया है, तो इसको सिमिली कहा गया है. तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है. तो यहां पोएट हैज यूज्ड द लिटरेरी डिवाइस टू एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ अ गर्ल. So one way of saying this was she is beautiful, and the other way of saying this was she shines as a star. Which one is more attractive? Of course, the second one, because literary device is used there. So there, the poet or the writer, what they do, they use these kind of tools to make their work more effective to the reader. ठीक है? तो whether it is a poem, story, a novel, or an essay, whatever it is, or even the speakers who give speeches, ठीक है, they also use this kind of tools to make their speech more attractive to the audience. ठीक है. Literary devices can be broadly defined as literary or linguistic techniques, as I have told. Techniques मतलब ये एक तरह का टेक्निक है ना, एक तकनीक है, एक क्या करने का, लोगों को अपने वर्क को और इफेक्टिव तरीके से समझाने का
और अपने जो इंटेंशंस हैं, इंटेंशंस बिहाइंड राइटिंग दोज लिटरेचर्स और पोम और स्टोरी और नॉवल, ठीक है, उस चीज़ को सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाने का, अपने जो रीडर्स हैं उन तक पहुंचाने का, ताकि वो उनके दिमाग पे, उनके मन पे एक इफेक्ट डाले। उस चीज़ को करने के लिए पोएट्स और राइटर्स ऐसा करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक इफेक्ट। एंड पूरा खेल जो है वो इफेक्ट का ही है, ठीक है। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस का यूज़ ही किया जाता है इसीलिए, ताकि उनके वर्क में एक स्पेसिफिक इफेक्ट आए। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? फिगर ऑफ स्पीचेस हो सकते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है किसी स्टोरी या नॉवेल के सेटिंग को या फिर को क्रिएट करने के लिए। सेटिंग मीन्स किसी भी वर्क का जो टाइमिंग होता है, प्लेस होता है ना, जिस समय पे वो जो स्टोरी या नॉवेल या फिर जो पोम है वो सेट है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेटिंग, मतलब टाइमिंग एंड प्लेसिंग, यू कैन से दैट। नरेटिव स्टाइल मीन्स उस कहानी को कहने का तरीका क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो, यू विल सी अ मूवी, तो व्हाट यू सी, हर मूवी को कहने का तरीका तो एक जैसा नहीं होता ना, राइट। हर मूवी को कहने का तरीका अलग अलग होता है। किसी किसी में क्या होता है कि करंट स्टोरी और फ्लैशबैक चलता रहता है, किसी किसी स्टोरी में कंटिन्यूएशन कहानी चलती रहती है ना। तो ये जो दो तरीके हैं कहने के, ये कहाँ होता है? ये सभी लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर आते हैं। दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स इन लिटरेचर। कैरेक्टराइजेशंस, कैरेक्टर्स को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर कैसा रहेगा, कौन सा कैरेक्टर राउंड रहेगा, कौन सा कैरेक्टर स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता थ्रू आउट द स्टोरी। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें थ्रू आउट द स्टोरी चेंजेस आते हैं। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है, ये सभी, इन सभी चीज़ों को लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर पर्टिकुलरली सब चीज़ों के लिए एक टर्म है। और प्लॉट, द स्टोरी, पोएटिक डिवाइसेस, रेटोरिक्स, the figure of speeches are all literary devices only, right? So we have discussed literary devices. What are literary terms? Literary terms are basically all the terms that we come through in literature, any kind of literature, let it be a poem or a story, a novel or an essay और रेटोरिक स्पीच। किसी भी चीज़ में जो टेक्निकल टर्म्स जो हमको मिलते हैं लिटरेचर में, ठीक है, उन सभी टर्म्स को एक साथ हम क्या कहते हैं? लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है, इसी के ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है, जो हमारा वीडियो ये सीरीज़ है लिटरेरी टर्म्स के ऊपर ही बेस्ड है। इसके अंदर होता है लिटरेरी डिवाइस, मतलब वो टूल्स, ठीक है, टूल्स, लिटरेरी डिवाइसेस मतलब टूल्स। अब इन टूल्स को तीन तरीके से बांटा गया है, ठीक है। वन इज रेटोरिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइस। इन शॉर्ट अगर हम समझें तो रिटोरिक डिवाइसेस को यूज किया जाता है स्पीचेस के लिए, मतलब जो वर्बल स्पीचेस होती हैं, जो स्पीकर्स खड़े होकर बोलते हैं ऑडियंस के सामने, उसके लिए रिटोरिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो वहां पे जब स्पीकर अपने डिस्कोर्स को, अपनी स्पीच को अच्छा बनाने की कोशिश करता है तो उसको रेटोरिक डिवाइस कहते हैं। और पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड फॉर पोम्स बाय पोएट्स, राइट। तो जब कभी भी कोई पोएट अपने पोम को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करता है तो उसे वो पोएटिक डिवाइसेस का यूज करता है। तो वो सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो पोएट्स पोम में यूज करते हैं उनको पोएटिक डिवाइसेस कहा जाता है, और वो सारे रेटोरिक डिवाइसेस जो स्पीकर स्पीचेस में यूज करते हैं अपनी स्पीच को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको रेटोरिक डिवाइस कहा जाता है। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बेसिकली इन दोनों से मिलकर बनता है। किससे? इससे और इससे। तो फिगर ऑफ स्पीच कहीं बीच में आता है, ठीक है। नाउ विल सी द डेफिनेशन वन बाय वन। तो फिगर ऑफ स्पीच इज अ लिटरेरी डिवाइस, जैसे कि मैंने बोला, लिटरेरी डिवाइस, बट नॉट ऑल लिटरेरी डिवाइसेस आर फिगर ऑफ स्पीचेस, ठीक है। तो हर फिगर ऑफ स्पीच की लिटरेरी डिवाइस है, लेकिन हर लिटरेरी डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच हो ये जरूरी नहीं होता। पोएटिक डिवाइस, रेटोरिक डिवाइस, ये सभी भी फिगर ऑफ स्पीचेस ही हैं, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा। तो सिंपली अगर कहें तो फिगर ऑफ स्पीच जो होता है इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन where writers use words out of their literary meaning. Literary meaning मतलब क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग, जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का,
तो वो जो मीनिंग है उसके आउट ऑफ प्लेस रहता है, ठीक है, जब कभी भी कोई वर्ड, ठीक है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, जस्ट एक एग्जाम्पल हमने देखा था, सी साइंस एज अ स्टार। तो यहां पे सी साइंस एज अ स्टार, यहां पे शाइन का मतलब क्या होता है, चमक। अब एक लड़की स्टार की तरह चमकेगी तो नहीं, इट्स ऑब्वियस। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली साइंस एज अ स्टार इज आउट ऑफ प्लेस इन दिस सेंटेंस। तो ये जो आउट ऑफ प्लेस वाला जो सेंटेंस फ्रेज है ना, ये क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये सिमिली है, जो कि एक पोएटिक डिवाइस भी है। क्यों? क्योंकि ये पोम में यूज हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच एक पोएटिक डिवाइस भी हो सकता है, एक रिटोरिक डिवाइस भी हो सकता है। फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी डिवाइस है, बट सभी लिटरेरी डिवाइसेस फिगर ऑफ स्पीच नहीं होते, ये भी चीज समझने वाली बात है कि बट ऑल लिटरेरी डिवाइसेस आर नॉट फिगर ऑफ स्पीचेस। तो दिस इज द सिंपल थिंग कि कभी भी कोई वर्ड अगर आउट ऑफ प्लेस यूज हो रहा है टू एक्सप्रेस समथिंग, ठीक है, समथिंग टू मेक समथिंग effective, then it's called figure of speech, right? Next, poetic devices. Poetic devices are a part, again this is also a tool, ये भी tool ही है, ये भी एक literary device ही है, which adds texture to the poem. For poem by poets, right? तो poetic devices का use poem के लिए होता है, poets के द्वारा, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हो गए, वो लिटरेरी डिवाइसेस हो गए जो स्पेसिफिकली पोम के लिए होते हैं। पर्पसफुल यूसेज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड साउंड्स टू एनहांस द मीनिंग ऑफ द पोम। अगेन द पर्पस इज सेम, टू एनहांस, ठीक है, एनहांस करने के लिए क्या, मीनिंग ऑफ द पोम। दे फोकस द साउंड, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। तो ये जो है ये साउंड पे फोकस करते हैं, फॉर्म्स पे फोकस करते हैं। फॉर्म्स मीन्स नंबर ऑफ स्टैंजास, नंबर ऑफ लाइन्स पर स्टैंजा, number of lines in a poem, or rhyming scheme is a sound, ठीक है, and different rhyming scheme, different poetic devices are there that relates to sound, जैसे कि onomatopoeia है, it is related to sound, alliteration is related to sound, and assonance is related to sound. These are some poetic devices I am telling. तो ये सभी जो है sound से related है, ठीक है, it creates sound in a poem. So poets use them to shape a poem, enhance its meaning, ठीक है, एंड एक्सप्रेस देयर इंटेंशन सक्सेसफुली। द सेम थिंग। तो पोएट इसका यूज क्यों करते हैं, पोम को क्रिएट करने के लिए, पोम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसकी मीनिंग को एनहांस करने के लिए, और साथ ही साथ अपने इंटेंशंस को सक्सेसफुली रीडर तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसका एक इफेक्ट हो किस पे, रीडर पे, राइट। राइमिंग, alliterations, meter are some examples of poetic devices. Not all literary devices are poetic devices. Again, हर एक literary device poetic device नहीं होता, ठीक है। तो poetic device literary device के अंदर आता है. We have seen this already. Now, rhetoric device is very simple, as I've already told you in the slide before. So, speeches और discourse के लिए यूज होता है इसका। जब कोई स्पीकर कोई स्पीच दे रहा होता है स्टेज पे खड़ा होकर, तो उस समय वो अलग अलग टूल्स का यूज करता है, ठीक है, किसके लिए, अपने स्पीच को अच्छा बनाने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं रिटोरिक डिवाइसेस, सिंपल रिटोरिकल डिवाइसेस। तो यूजेस टू लैंग्वेज दैट इज इंटेंडेड टू हैव एन इफेक्ट ऑन इट्स ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस सुन रहे हैं। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, टूल्स होते हैं, जैसे कि रिपीटेशंस का यूज करना, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है, और इस आपका स्पीड कैसा है बोलते वक्त, आपका इंटोनेशन मीन्स राइज एंड लो ऑफ योर वॉइस, आपका आवाज़ का जो कम ज़्यादा होना, इसको इंटोनेशन कहा जाता है, इंटोनेशन। तो ये सभी क्या हैं, टूल्स हैं, रिटोरिक डिवाइसेस हैं। इवन रिटोरिकल क्वेश्चंस, मतलब कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर्स रुक कर क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी एक रिटोरिकल टूल है, ठीक है, टू मेक द स्पीच मोर इफेक्टिव, राइट। सो टू सम अप वी कैन सी literary terms, मतलब all the terms that we come through in literature. Literary devices are the tools, right, used in different forms of literature, right. Now
under literary devices, two more are there, rhetoric and poetic. They actually are literary devices only, but they are used while speaking, ठीक है, and these are used for poem by poets. And figure of speech are the words out of place to convey a effective idea. क्लियर? तो ये सभी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं. Done. So with this we have summed up our video. In the next video that is going to come in this series is consisting of metaphor, simile, metonymy, synecdoche and pun. So see you there in the next video. Thank you for watching my video and hoping to see you in the next video. Thank you.